Tinay and the Faraway Mountain by Shikha Tripathi. I completely let go of fear of norms and fear of society. I was neither afraid of failure nor dying. I believed in my own strengths and nurtured my natural talent. I improved my weaknesses. And above all, I always followed my heart. Tinay Mena, Mountaineer. Today is a big day for Tinay Mena. At the age of 25, she has become the first woman from northeast India to climb the Everest. At 8,848 meters, Everest is the highest mountain in the world. It's as high as 5,000 men, who are 6 feet tall, standing on top of each other. This is the story of Tinay's journey. A girl who loves to climb mountains. Whooshoo! Whooshoo! In the Mishmi hills of Arunachal Pradesh, Tinay heard a wondrous call from the distant mountains. She was drawn to it, a sound only she could hear. Tinay loved to climb. She climbed trees, ran through the jungle, and went fishing in the river. She was as fearless and strong as Naya, her grandmother. If Tinay fell down, Naba, her father, would tell her to get up and carry on. Tinay and her younger sister Soni loved eating apples, oranges, and berries from the forest. They spent long days lying under the sun. Ah, Tinay would smile. What a wonderful life! But one day, Tinay's world turned upside down. There was no school in Echali, so her family moved to the closest big town, Roing. There, the whooshoo became a faint whisper. All she wanted was to be in the mountains. 10 years later, Tinay finished school. The mountain call was strong again. Whooshoo! Whooshoo! To be close to her mountains, Tinay applied to be a porter for an army expedition. She could carry heavy loads and march for days, shoulder to shoulder with others. But there was one small problem. Women were not allowed to be porters. But did that stop her? Of course it didn't. Tinay dressed as a boy and began working. She'd carry nearly 25 kilos every day. It took a week for everyone to realize that she was a girl disguised as a boy. Tinay was scolded for breaking the rules, but she could work as much as the boys and knew the route better than anyone. So the officers agreed to let her continue working. Her act would later help lift the ban on female porters. Tinay worked hard and became a coordinator, someone who plans mountain trips. That's when she met Dr. Romeo Maite, the leader of an expedition. I must say that you have all the makings of a naturally gifted climber, he said. You have the build, the strength, and the determination. Now all you need is technique. Dr. Maite became her mentor, and Tinay began her training. But it was when Tinay saw The Race for Everest, a film about the first climb of Mount Everest, that she heard about her dream mountain. The whooshoo became a roar. Climbing Mount Everest became Tinay's dream. Finally, Tinay left for Nepal. She was anxious but determined. At the Everest base camp, it was cold and the air was thin. After her training, Tinay began her climb with Chering Sherpa. The climb was divided into 4 sections, so climbers could rest at different camping points and continue to the top over a few days. By the time Tinay and Chering Sherpa reached the second camp, the weather had worsened, but the musical whooshooing was also growing louder and hypnotic. "Do you want to go ahead?" Chering asked. "I don't think I will get another chance to do this," Tinay said. Somehow,
they reached their final camp. But the wind blew their tent and supplies away. They found another tent in which they took shelter. No walkie-talkies, no medicines. All Tinay and Chering had was a packet of noodles. "Let's share half of it," Chering suggested. "If we make it alive, we will eat the other half," Tinay said, with a determined smile. For every 2 steps they took, the wind sent them reeling back a step. The stormy winds howled, "Go away!" But Tinay could only hear whoosh-shoo. With new resolve, they fearlessly began the last push to reach the top. At 10:45 a.m. on 9th May 2011, Tinay summited the highest mountain in the world. The young girl who loved to climb trees had climbed to the top of the world. She had found her faraway mountain and was one with the sound that had called her all her life. Whooshoo! She dances with her beloved mountain. हाँ, इंग्लिश एनिमेशन देखने के बाद तो आप लोगों ने डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं टीने की स्टोरी जो हम लोगों को करेगी बहुत इंस्पायर। ये टीने कौन है और उसका ये कौन सा माउंटेन है भाई? तो चलिए, टीने नाम की जो 25 ईयर्स की लड़की है, कुछ अजूबा कर डाला था उसने, तो चलिए देखते हैं। वो बोलती है कि मैंने अपने सारे दुनिया भर के डरों के ऊपर, जितना डर लगता है ना, वो सारे डर मेरे ख़त्म हो चुके थे। अब ना मैं कभी फेल होने के लिए डरती थी, ना मरने के लिए डरती थी। मैं सोचती थी कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा करके चली जाऊंगी। हाँ, मेरी ताकत, मेरी जितनी भी बुरी आदतें थी, इन सब पे मैंने कंट्रोल कर लिया था, सबको मैंने रिपेयर कर लिया था और कुछ भी करके मेरे मन का मुझे अब सुनना था। जो मेरा दिल कहेगा वो मुझे करना था। अरे लड़की हुई तो क्या हुआ भाई, हम लड़कियों को भी तो कुछ होता है। ये टीना मेनन नाम की जो लड़की है, ये पर्वत के ऊपर चढ़ना चाहती थी, गिरियारोहक बनना चाहती थी और आज का दिन उसके लिए बहुत ही बड़ा दिन है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक पहली महिला 25 साल की, इतनी चीज़ छोटी सी उम्र में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली लड़की थी जो एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ चुकी थी। आपको पता है 8,848 मीटर चढ़ना, अरे कोई इम्पॉसिबल सी बात है क्या? हाँ भाई हाँ, इम्पॉसिबल। एवरेस्ट जो सबसे दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, अगर हम 6 फीट के जेंट्स को खड़ा कर दे एक दूसरे के ऊपर तो भी हम लोगों को 5,000 जेंट्स लगेंगे। इतनी ऊंची छोटी पर वो लड़की, हाँ 25 ईयर्स की टीने चढ़ गई थी। अरे इतनी चढ़ाई, इतना ट्रैवल, ये जर्नी कोई सीधी सादी आम नहीं थी। एक गांव की छोरी इतना बड़ा माउंटेन चढ़ गई, कैसे? हुशू हुशू, ये जो आवाज़ थी, ये हाँ मिशमी अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव, उस गांव में रहने वाली ये टीनी से ये आवाज़ दिन रात सुनाई देती थी, उसे सोने नहीं देती थी, उसे पुकारती थी। ऐसा लगता था कोई तो माउंटेन है और वो उसे हुशू हुशू करके पुकार रहा है। और ये माउंटेन को चढ़ जाना उसे उसकी ड्रीम बन गया था। इसके लिए वो बचपन से ही ट्रीज़ के ऊपर चढ़ती थी, माउंटेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती थी, गिर जाती थी, फिशिंग करती थी, चोट लग जाती थी। उसकी दादी जो न्यासा, जो उनका नाम न्याया है, वो न्याया भी उनको बहुत मोटिवेट करती थी और उनको बिना डरे सब करने के लिए बोलती थी। नाबा जो उनके पापा है, वो भी उन्हें मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे। जब वो गिर जाती थी टीने, तब वो उनको बोलते थे, अरे उठ, चल भाग, लड़की है, रोना नहीं है, अंगार है तू,
अबला नहीं तू सबला है। और ये टीने बचपन में एप्पल्स खाती थी, ऑरेंज खाती थी, ग्रेप्स खाती थी। अरे कोई मार्केट से खरीद के नहीं लाते थी, वो जंगल से ढूंढ ढूंढ के वो दोनों बहनें एक दूसरे के साथ बैठ के मस्त से खाया करते थे, मस्त से इंजॉय करते थे। वाह क्या वंडरफुल लाइफ हुआ करती थी उनकी। लेकिन जो आवाज़ थी उशू उशू, वो उसे बिल्कुल ही चांस बैठने नहीं देती थी। एक दिन टीने की जिंदगी में उतार चढ़ाव आ गया। अब ये उतार चढ़ाव क्यों आ गया? क्योंकि उइचेली नाम की गांव में जब वो रहती थी, वहाँ पे गांव में स्कूल नहीं हुआ करता था। तो रोइंग नाम का जो गांव था, वहाँ पे स्कूल के लिए उसकी फैमिली क्या हो गई, वहाँ पे चली गई। हुशू हुशू अब कम सुनाई, बिल्कुल ही नहीं सुनाई देने शुरू हो गया। क्योंकि शहरों में तो भाई हवा ही नहीं लगती है, तो हुशू हुशू की आवाज़ कहाँ से आएगी। फिर भी उसके मन में था कुछ ना कुछ माउंटेन के ऊपर करूँगी। और 10 साल के बाद जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई, जब वो स्कूल की लाइफ से बाहर आ गई, तब उसने सोच लिया कि मेरा ड्रीम हुशू हुशू कहाँ है, ये कहाँ की आवाज़ है, ये कौन सा माउंटेन है, ढूंढूंगी, देखूंगी, करूँगी। ऐसे उसने ठान लिया था। अब उसने क्या कर दिया, जो आर्मी के ट्रेनिंग्स रहते हैं सेंटर, वहाँ पे उसने अप्लाई कर दिया और वहाँ पे वो जाने लगी। वो जाती भी थी, मार्च भी करती थी, बहुत हेवी बैग्स उठा के वो जाया करती थी। उन दिनों में उसने बहुत कड़ी मेहनत अपने शोल्डर के ऊपर वो बहुत वेट लेके जाया करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी हो चुकी थी कि लड़की, हाँ, कोई भी औरत आर्मी के उस पोर्टर में काम नहीं कर सकते थे। आय हाय, रुकने वालों में से थी क्या टीने? बिल्कुल नहीं। उसने अपने हेयर को कट कर डाला ताकि वो बॉय की जैसे दिखे, बॉय की जैसे एक्टिंग करने लग गई और वो वहाँ पे फिर से ज्वाइन हो गई। और फिर से ज्वाइन होने के बाद नियरली 25 किलो का वेट वो उठा के मार्च करती थी। अब क्या हो गया, एक दिन पकड़ी गई भाई। अरे लड़की है और लड़की होने के बाद रूल तोड़ दिया, इसलिए पनिशमेंट के लिए उसको लाया गया। लेकिन फिर बड़ी ही उनको भी तरस आ गया कि यार लड़की है इसलिए इतना बड़ा तो उसके ऊपर हम नहीं कर सकते, कुछ तो दया दिखानी पड़ेगी। फिर उन्होंने सोचा और बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, लड़की है तो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं, करेगी, हमारे साथ ही रहेगी। और ऑफिसर ने परमिशन देने के बाद अब टीने जो है एज अ लड़की अपना काम करने लग गई, कंटिन्यू हो गई। क्योंकि उसे सारे रास्ते पता थे और उसके जैसा हार्ड वर्क कोई नहीं कर सकता था, कोई बॉय भी नहीं कर सकता था। और इसका ही एक बहुत अच्छा सा चेंज ऐसा हो गया कि लड़की अभी आर्मी में आना शुरू हो गई, पोर्टर एज ए बनने लग गई। उसकी कोऑर्डिनेशन, उसका कोऑर्डिनेटर जो था, उसने एक दिन उसको बताया कि जो भी माउंटेन ट्रिप के लिए जाते हैं उसकी प्लानिंग वही करती थी। और ऐसे करते करते ही उसकी मुलाकात एक दिन डॉक्टर रोमियो मेटल से, जो लीडर थे ऐसे माउंटेन चढ़ने के लिए, जो प्रदर्शन यात्री और जो जाते हैं, जो उनका खर्चा करता है, वो वाले थे। तो उन्होंने जब टीने को देखा, तो टीने को देखने के बाद ही उन्होंने सोच लिया था, समझ लिया था कि इसमें नेचुरली ये कीड़ा है और ये बहुत अच्छी माउंटेनियर बन सकती है। तब उन्होंने बोला कि बेटा गॉड गिफ्टेड है और तुमने इसको मेंटेन करके रखा है, तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है ये तुम्हारी पावर है, ये तुम्हारी एनर्जी है। अब तुमको ज़रूरत है परफेक्ट ट्रेनिंग की, परफेक्ट टेक्निक की, जो तुम्हें तुम्हारी सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। तब डॉक्टर मेंटेल ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। और तभी से, लेकिन तभी भी नहीं, एक दिन टीने ने द रेस फॉर एवरेस्ट नाम की जो मूवी है, जो एवरेस्ट के ऊपर ही बनी है, तो वो मूवी जब देखी, द रेस फॉर माउंट एवरेस्ट, तब उनको पता चला कि उनके सपने में आने वाला जो साउंड था उश उश, और वो जो उनको माउंटेन दिखता था, वो माउंटेन असल में एवरेस्ट था। और उन्होंने सोच लिया कि अब मुझे दूसरा कोई माउंटेन चढ़ना नहीं है, मुझे तो एवरेस्ट ही चढ़ना है। और फिर उन्होंने अपने ड्रीम की तरफ तेज़ी से दौड़ लगाई और वो पहली बार नेपाल के लिए निकल पड़ी। हाँ,
ट्रेवल बहुत दूर की थी, लड़की थी, थोड़ी सी कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन इतना बड़ा था कि उसने जाने की कोशिश नहीं, वो गई। एवरेस्ट के जब कैंप लगे थे तो उसमें उसके साथ चेरिंग शेरपा नाम का जो है गुरु, उसका फ्रेंड, उसके कलीग बोल सकते हैं, वो उनके साथ था। भाई इतना बड़ा एवरेस्ट चढ़ना है तो उसके लिए सेक्शन करने पड़ेंगे। 4 स्टॉप्स बनाए गए, सेक्शन 1 2 3 4 ऐसे करके, और उसके लिए अलग अलग टेंट होते हैं, उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट होती है। सारे इकट्ठा किए गए थे, मेडिसिन थे, वॉकी टॉकी थी, ये सब चीज़ें इकट्ठा करने के बाद निकल पड़े। टीने एंड चेरी शेरपा जब एक सेकंड कैंप में बैठे थे तभी की बात है, बताते हैं कि इतना वेदर वर्स हो गया था, इतना बुरी तरीके से वातावरण में चेंजेस आ गए थे। जो हुशू हुशू उसे सुनाई देता था, वो हुशू हुशू अब जोर जोर से, बड़ी ही धड़ांग धड़ांग आवाज़ से उसे सुनाई देना शुरू हो गया था। इतना गंदा वातावरण में लड़की का आगे जाना चेरिंग शेरपा को भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने पूछा, टीने आगे जाना चाहती हो? तब टीने ने थोड़ी देर सोच के बताया कि भाई तुम्हें तो अलग चांस मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चांस मुझे बाद में फिर से मिलेगा। मैं जाऊंगी, करूंगी या मरूंगी, पर मैं तो जाऊंगी। और फिर वो गए फाइनल कैंप में। अरे वो गए, लेकिन ज़ोर से जो हवा आई तो उनका कैंप, उनकी जितनी भी चीज़ें थी सब हवा ने तहस नहस कर दी थी। और उनको दूसरा वाला शेल्टर तो मिल गया, लेकिन उनके पास अब ना मेडिसिन थी, ना वॉकी टॉकी था, ना हेल्प करने के लिए, ना इक्विपमेंट्स थे। बचा था उनके पास खाली एक नूडल्स का पॉकेट और 2 लोग। टीने भी थी, चेरी शेरपा भी था। तो उसने उसको बोला कि देखो टीने, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है इस पॉकेट के सिवा, तो हम इसे हाफ हाफ बांट लेते हैं, खा लेते हैं। तो चेरिंग की तरफ देख के टीने बोली, अरे हम वहाँ से ज़िंदा आएंगे और इसे खाएंगे। चेरी ने उसकी तरफ देखा, स्माइल किया, वाह कितना डिटर्मिनेशन है इसका। और वो निकल पड़े अपनी यात्रा की ओर, मतलब एवरेस्ट चढ़ने की ओर। आगे आगे जा रहे थे और जोर से राक्षस बनी हुई हवा उन्हें बोल रही थी, जाओ यहाँ से। हाँ, लेकिन टीने को खूबसूरत सी हुशो हुशो फिर भी सुनाई दे रही थी, उसे बुला रही थी। लग रहा था उसका माउंटेन उसे बुला रहा है, और वो दुनिया की सारी दिक्कतों को दूर भगा के आने वाले रास्ते में चोटियों को डाल नीचे नीचे जाके ऊपर ऊपर जाके कैसे भी वो चढ़ रही थी। और 9 मई 2011 के 10:45 में वो उसने अपना ड्रीम अचीव कर लिया था। सबसे हाईटेस्ट माउंटेन के ऊपर वो लड़की अपना तिरंगा झंडा लेके खड़ी थी, वो सबसे जवान लड़की जिसने अपना सपना देखा, और सपना देखा नहीं, सपना पूरा भी कर लिया था। जो उसका मन चाहा बहुत दूर माउंटेन, अब वो उसे गले लगा रही थी, उसके ऊपर नाच रही थी। उसके ज़िंदगी की वो खुशी जो लोग पाने के लिए तड़प उठते हैं, वो खुशी उसने पा ली थी। ये वीडियो मैंने बनाते हुए बहुत तकलीफ हुई है भाई, लाइक कर दीजिए ना, शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। देखते रहिए मेरे चैनल को, वीडियो को।